Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome to Easy Way Mathematics with Khalil Imam. In this lecture, we discuss about array, length, stacks, and stack and queues. So first we discuss about the definition of array. Let we start our lecture with the definition of array with examples. Try to understand the definition of array. The definition of array states that an array is a collection of elements of the same data. Here is a will be same. Okay, types stored in a here is a continuous memory locations. So just focus about these two words, same data and continue memory locations. So the definition of array stated कोई भी एलिमेंट जो होगा वो सबसे पहले क्या होना चाहिए, सेम डेटा का होना चाहिए और वो कंटिन्यूस होना चाहिए. So how is this possible? How the example of array stated here is a players score in a game, any games. For example, cricket games or any games. Here is a score is continuously making it may be increasing or decreasing, no issue, but continuously. First player, here is a index 1. Index denote the player. Player 1 make a 85 runs. Player 2 make a 90 runs. Third player make a 50 runs. Here is a these runs show the continuously memory locations. Okay, here is a show date continuously memory locations and index 1, index 2, index 3. It means this means player 1, player 2, player 3 is same data. So these are the players. Okay, here is these are continuously. First player make this run, second player make this runs, and third make 50 runs. So continuously it may be data are increasing or decreasing. Here is no issue, but continuously make some runs. It may be a fourth or fifth make so 0 runs. Here is no issue, but continuously make some runs or not. So these scores show the continuously data, and here is the player 1, player 2 show the same type of a data. So area stated the collection of some elements. Elements show the same types of data. So same type of data here is stored, some continuously, some continuously. Here is a continuously memory location. So this is the best, I think, best example to the array. Okay, now we try to understand the linked list. The definition of linked list is stated the linked list is a linear data. Here data are linear. So a structure in which elements called nodes and linked using pointers. First we try to understand the here is the two words. First word is nodes and second is pointers. Okay. So यहाँ पर जो लिंक लिस्ट होगा ना वो एक्चुअली एक स्ट्रक्चर बनाएगा, एक ऐसी स्ट्रक्चर होंगे उसके अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट्स होंगे ना जो नोड्स होंगे और पॉइंटर्स होंगे. सो नोड्स का मतलब क्या होता है? सो हियर इज अ नोड्स. एक्चुअली नोड्स मीन कंटेन, node means contain some data. Okay, so nodes means what? Node means contain some data. So pointer means, what's mean by pointer? So actually the word of pointer means connector. Okay, pointer means what? Pointer means connector. अब यहाँ पे जो हमारा डेटा होगा ना वो लिंक्ड होगा, वो आपस में क्या होगा, जुड़ा हुआ होगा, कनेक्ट होगा, तो उसको हम लिंक्ड कहेंगे. So the best example of linked list is train. Train is the best example of linked list. So how? Look at this. अब देखिए ट्रेन के अंदर कुछ कैरिज होते हैं ना, जो उसके अंदर कैरिज हैं, if we have this types of train, for example, ये देखिए यहाँ पर कैरिज होंगे, यहाँ पर सीट्स होंगे. ओके, हियर इज सम सीट्स
are some percent passenger. Here is also some seats and some passenger. So passenger and seats are nodes. वो हमारे क्या कहलाएंगे? वो हमारे नोड्स कहलाएंगे, क्योंकि नोड्स क्या होगा? डेटा कनेक्ट करेगा ना। कंटेन क्या करता है? डेटा कंटेन करता है। डेट्स वाई nodes is in the carriage. Okay, it mean it may be a seat, it may be a passenger, some passengers. वो हमारे nodes कहलाएंगे। और जो ये दो कैरेज को आपस में कनेक्ट करने वाला है ना, here is this one, ये टू कैरेज है हमारे। टू कैरेज को जो कनेक्ट करने वाला है, दिस वन इज नोन एज द पॉइंटर्स, उसको हम पॉइंटर कहते हैं। तो नोड किसको कहते हैं? नोड्स वो होते हैं जो कंटेन करेगा सम डेटा, और पॉइंटर किसको करते हैं? जो हमारे पास डेटा है उन डेटा को कनेक्ट करने वाला जो क्या कहलाएगा? पॉइंटर कहलाएगा। ओके, सो नाउ वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द स्टैक्स एंड क्वेरीज। इफ यू वांट टू take the screenshot of this one, you may take. So now we discuss about the stacks and queues. So first we discuss about the definition of stack. The definition of a stack is state date. A stack is a linear data. It follow LIFO. It means date last in first out. ओके, जो आप सबसे पहले पुट करेंगे वो सबसे लास्ट में आउट होगा। तो इसमें क्या होगा? इसको फॉलो करेगा, LIFO को फॉलो करेगा। आपके पास कुछ डेटास होंगे, ठीक है, जो डेटा है, अब कुछ उसके अंदर डेटा पुट करते जाएंगे, पुट करते जाएंगे, पुट करते जाएंगे। अब उसको रिमूव करने की जब बारी आएगी, तो आपने जो लास्ट में रिमूव किया है, जो लास्ट में डेटा भेजा है या लास्ट में पुट किया है, सबसे पहले आपने उस डेटा को रिमूव करना है। स्टैक की डेफिनेशन क्या कहती है? फॉलो इसको करना है, लास्ट इन फर्स्ट आउट करना है आपने। जो सबसे पहले आपने सबसे लास्ट में जो आपने डेटा उसको सेंड किया, सबसे पहले वो ही आपने रिमूव करना है। किस तरह से? इफ वी हैव अ डेटा इज फर्स्ट इज डेटा 10, हमने 10 पुट किया, उसके बाद सेकंड 20 पुट किया, थर्ड हमने पुट किया 10 20 था, 30 पुट किया, उसके बाद हमने पुट किया 10 20 30 था, उसके बाद 40 पुट किया। जब हम रिमूव करेंगे, जो लास्ट वाला आपने पुट किया हुआ है सबसे पहले वो रिमूव हो जाए, हे द 40। इफ वी रिमूविंग द डेटा, जो लास्ट में आपने सेंड किया है डेटा या पुट किया है, उसको रिमूव किया जाए, हे द 40 इन द लास्ट डेटा। सो फर्स्ट वी रिमूव द 40, 10 20 एंड 30 बचेगा। अगर अब भी रिमूव करोगे 30 रिमूव हो जाएगा, रिमूव करोगे 20 रिमूव हो जाएगा। इट मीन्स जो आपने लास्ट में डेटा भेजा है, सबसे पहले वो ही डेटा आपका रिमूव होता जाएगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड विद द अदर एग्जांपल्स। हम अगर बुक के ऊपर बुक रखेंगे, बुक के ऊपर बुक रखेंगे, बुक के ऊपर बुक रखेंगे, तो अगर बुक उठाना होगा तो क्या करेंगे? सबसे लास्ट में आपने जो बुक रखा है तो वही उठाएंगे, और जब सबसे पहले आपने बुक रखा है वो सबसे लास्ट में उठाया जाएगा। हियर इज द सेम थिंग्स। सबसे पहले आपने क्या पुट किया? 10 पुट किया ना, ये सबसे लास्ट में आप उठाएंगे, इसको सबसे लास्ट में रिमूव करेंगे। ये डेफिनेशन ये कहती है कि अगर आपने जो डेटा फर्स्ट पुट किया है वो लास्ट में रिमूव होगा, जो लास्ट में आपने सेंड किया था वो फर्स्ट रिमूव होगा। जो आपकी अप बुक होगी, अपर सबसे ऊपर वाली बुक होगी, हम उसको रिमूव करेंगे, उससे नीचे एंड सो ऑन। जो हमने लास्ट में, इट मीन फर्स्ट में पुट की है या रखी थी, उसको उठाएंगे ना। सो हियर इज द सेम थिंग्स। ओके, अच्छा, उसके बाद क्यूरीज की जो डेफिनेशन है, क्यूरीज डेफिनेशन स्टेट इज अ क्यू is a linear data structure that follow FIFO. It means first in first out. आप जो सबसे पहले पुट करेंगे, ये सबसे पहले रखेंगे, वो ही सबसे पहले रिमूव करना होगा। These are the inverse to each other. उसमें सबसे पहले जो रखेंगे वो लास्ट में आउट होगा, इसमें जो सबसे पहले रखेंगे वो सबसे पहले रिमूव होगा। So here if we have a data, same data, 10, in other data is 10 20, in other is 10 20 and 30। if we remove the data, जो हमने सबसे पहले रखा था, we have the data is 10, वो remove the 10 is remaining is 10 and 20, sorry 20 and 30। so जब सबसे पहले जो हमने रखा है उसको हम रिमूव करेंगे सबसे पहले। so we try to understand with an examples। अगर आप किसी बैंक में चले जाएं चेक पास कराने के लिए, जितना आप पहले जाएंगे उतना ही पहले आएंगे, सही है।
जितना आप लाइन में पहले खड़े होंगे तो उतने ही पहले आएंगे ना, फर्स्ट जाएंगे तो फर्स्ट आएंगे। सो हियर इज द सेम थिंग्स, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जितना आप पहले जाएंगे, जो आपका पहले डेटा होगा वही आपका पहले डेटा रिमूव किया जाएगा। इफ यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट यू may take it. If you have any queries you may ask in comment section. तब तक इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।